कर रहे थे, राइट? सो देयर वी वर कॉलिंग फंक्शंस. नाउ इन जावा वॉट एवर फंक्शन वॉज वर्किंग, सो उनको फंक्शंस कहने के बजाय हम इसमें क्या कहेंगे, वी विल क्रिएट हियर मेथड्स. Okay, now as you can see, I am using an online compiler. Now you can see there has been a class created demo. Now in that I have created one variable, that is integer a is equals to 10, then string s is equals to Sipna. Now you know that when you were creating an function, जब आप कोई भी function create करते थे तो वो किस तरह से था, what was the syntax of creating any function? Yes, किसी को याद है function कैसे create करते हैं? So return type, yes, return type. Then we will have a function name. Now in Java we will call this at method name. Okay. Then in bracket you can pass parameters. Okay. Number of parameters you can pass to a method. Then method body. Okay. Whatever task you want to do with that method, that can be done with the method body. Okay, this is a generalized syntax. Now, if I want to create a function which will display the output, so now rather using meaning or display statement, what we will do, we will create a method. अब आपके प्रोग्राम में बार बार अगर मुझे किसी चीज को डिस्प्ले करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मल्टीपल टाइम्स आउटपुट स्टेटमेंट लिखना अवॉइड करूंगी. आई विल क्रिएट एन मेथड विच विल रिस्पॉन्सिबल टू डिस्प्ले द डेटा. ओके, उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल जैसे किया है मैंने, वैसे क्या होगा, इट विल डिस्प्ले द आउटपुट. सो नाउ फोकस ऑन द प्रोग्राम एवरीवन प्लीज. क्लास डेमो क्रिएट किया मैंने, क्लास कीवर्ड डेमो. देन आई हैव क्रिएटेड वन वेरिएबल कॉल्ड एज इंटीजर a is equals to 10. Then string s is equals to Sipna. Now we are creating one method that is called as show method. Now what is the work of show method? उसका रिटर्न टाइप है void, नेम है show, और उसके अंदर मैंने लिखा है system.out.println a and s. So whatever is the data of a and whatever is the data of s, that will be used. Okay, that will be displayed over here. Fine. Now after that I have closed the demo class. अब मैंने क्या किया, डेमो क्लास को क्लोज कर दिया, मेथड को भी क्लोज कर दिया और डेमो क्लास को भी क्लोज कर दिया. Now I am using another class which is called as main class of Java. In that, why I am calling this class as a main class, because I can see the main method of Java is written in that class. Okay, it is not necessary in the same class you can write down the main method, there you can create an object. But let's see, Java gives us an accessibility of creating objects, and now we will see what is the actual use of object. Okay, so now what we have done, we have created one class demo. उसके अंदर हमने वेरिएबल और उसके मेथड्स को लिख के रख दिया. नाउ हमने एक मेन क्लास क्रिएट किया टेस्ट नाम का, जिसमें मैंने कॉल की जावा की मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args. Now what I have done in this class, I have created the object of demo class. जो ऊपर क्लास लिखा था ना हमने, उसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करना है, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट का नाम, न्यू ये कीवर्ड, अगेन क्लास नेम एंड राउंड ब्रेसेस. Right, now demo d is equals to new demo. Fine. Now what we are trying, by creating an object in this class, we are trying to access the data members and member functions of the upper class. Okay, so d dot show, ये भी हमने देखा था कि अगर मुझे कोई भी वेरिएबल या मुझे कोई भी मेथड को एक्सेस करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के थ्रू, सो वी आर गोइंग टू यूज द डॉट ऑपरेटर. Okay, so to call the method from demo class, what is the syntax, d dot show. Now what we need, हमें क्या चाहिए, we need that we should get an output. Okay, हमें output मिलना चाहिए. So your program is going to be executed, right? आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा. Okay, so see, जावा को एग्जीक्यूट करने के बाद वी आर गेटिंग एन आउटपुट 10 एंड सिपना. अब हमने क्या किया, हमने system.out.println ये स्टेटमेंट डेमो इस क्लास में लिखा था. इफ यू कैन सी, एंड विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट आई एम एक्सेसिंग दोज मेंबर function in my
मेन क्लास में मेरा जो मैंने टेस्ट नाम का मेन क्लास क्रिएट किया उसमें हम उसको कॉल कर पा रहे हैं. दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. ये सारी चीजें हम प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज में नहीं कर पाते थे. फॉर दैट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग द कंसेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. ओके, now let's move towards the next program. Now if in place of s, if we are having two integer variables and we want to perform an addition. Okay, अब मेरे पास स्ट्रिंग इस वेरिएबल को छोड़ देती हूँ. नाउ आई विल ट्राई टू हैव टू वेरिएबल्स एंड फर्स्ट वी विल हैव अनदर मेथड कॉल्ड एज void addition. आपको अगर आपका सी का कैलकुलेटर का प्रोग्राम याद होगा तो उसमें हम ये चीज करते थे, राइट. सो इंटीजर लेट से सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, सेमीकोलन. एंड नाउ इसको void की जगह वी विल हैव एन रिटर्न टाइप इंटीजर और इसको सी को रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न सी. ठीक है, तो अब क्या हो गया, एडिशन में आपकी वैल्यू चली गई, राइट. अब आपको यहाँ पे उसको डिस्प्ले करना है, तो कैसे डिस्प्ले करेंगे? यस, हाउ विल यू डिस्प्ले दिस? डिस्प्ले कैसे करेंगे आप? प्लस ए प्लस सी. प्लस सी करूँ तो डिस्प्ले हो जाएगा? यस मैम. चलो देखते हैं प्लस सी करने के बाद वेदर वी गेट एन आउटपुट. यस यस यस, पाहिजे नाही ना, रिटर्न टाइप पाहिजे नाही ना वरच्या रिटर्न टाइप का नाही पाहिजे? आपण सी ला रिटर्न करत आहे तर सी चा डेटा टाइप काय आहे? इंटीजर, राइट. मग जर का रिटर्न स्टेटमेंट लिहित आहे तर मग फंक्शनला पण रिटर्न टाइप द्यावा लागेल, है ना. त्यांनी रीड केला पाहिजे. येस, ऍडिशनला क्लास मधले डायरेक्ट ऍक्सेस करू शकतो ना आपण व्हेरिएबल ऍक्सेस करू शकतो. पण मग दोन मी तेच तर विचारत होते तुम्हाला की मी कसं करू, व्हाट शुड आई राइट हियर. तू एक्सेस ही कर रहा है ना, जिन्होंने बताया सी दैट इज एक्सेसिंग इन अनदर मेथड, है ना. कोशिश करते हैं, देखते हैं वेदर आपको आउटपुट मिलता है या नहीं. Yes, it is giving you an error. What is the error? Just try to read it. That your program is not getting this symbol C. क्यों नहीं दे रहा है C को, वो क्यों नहीं ढूंढ पा रहा है? Because I have created C variable in the method और मैं उसको रिटर्न कर रही हूँ. तो यहाँ पे आपको अगर उसको यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे आप? एडिशन इस फंक्शन में आपकी वैल्यू अवेलेबल है, फंक्शन के बाहर डिक्लेअर करना पड़ेगा. फंक्शन के बाहर डिक्लेअर. हाँ बोला. पहिले इंटीजर टाइप जसं ए आणि बी चं घेतलं तसं करायला लागेल ना वरती. तसं वरती सी ला घेऊ. अच्छा अंदर बघूया. आउटपुट 0 देता है ना, तो आउटपुट काय यायला पाहिजे? सी तुम्ही हे फंक्शन्स आधी केले आहेत की नाही केले आहेत? तसे काही केले मॅम. केले मॅम आहेत. ऍडिशनला कॉल करू ना आपण. तेच तर विचारत आहे मी. ऍडिशनला पहिले तुम्हाला कॉल करावं लागेल ना. आपण डायरेक्ट कशाला कॉल करत आहे? डायरेक्ट आपण शोला कॉल करत आहे, राइट. सो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कॉल हियर एडिशन. सो बी डॉट एडिशन को कॉल कीजिए, ठीक है. बी डॉट एडिशन को कॉल करने के बाद फिर नाउ यू कैन कॉल दी शो मेथड. तो शो क्या करेगा? इट विल डिस्प्ले दी आउटपुट. ओके, सो दिस वॉज अ सिंपल थिंग. आपण या मेथडला इन्व्होकच नव्हतं केलं, आपण त्या मेथडला एक्झिक्यूट करायला सांगत होतो का? नहीं. तो प्रोग्राम काउंटर काय करत होतं तुमचं? व्हाट वॉज युअर प्रोग्राम डूइंग? वो सब इनिशियलाइजेशन कर दे रहा था, बट सी को एग्जीक्यूट करने के लिए उसको हमने प्रोवोक ही नहीं किया ना. यू हैव टू एग्जीक्यूट दिस ऑपरेशन अंटिल हम जब तक उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू इनिशियलाइज उसको बोलते नहीं है कि आप एग्जीक्यूट हो जाइए, तब तक वो मेथड आइडल स्टेट में रहेंगे. ओके, सो दिस इज पहले हमने किया डी डॉट एडिशन एंड देन डी डॉट शो. तो इट विल शो, इट इज शोइंग अस आउटपुट. नाउ सी, जब आप प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज करते थे तो क्या होता था कि आपको वही के वही आउटपुट को डिस्प्ले करना मैंडेटरी हो जाता था, राइट. नाउ एडिशन ये अलग मेथड लिखी मैंने एंड शो ये दो अलग अलग मेथड मैंने लिखी. उसमें मैं उसके वेरिएबल्स को एक्सेस कर रही हूँ, उसको डिस्प्ले करने की कोशिश कर रही हूँ. अगर ये आपका सी का प्रोग्राम होता था तो आपको सी को रीड करना, मीन्स
एक मेथड में हमने रिटर्न करने के बाद वी हैव टू रीड दैट फर्स्ट, रिटर्न कर यूज करना पड़ता था, है ना, एडिशन इस मेथड को, एंड देन यू कैन हैव एन आउटपुट, राइट. सो व्हेनेवर वी आर यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, द एक्सेसिबिलिटी ऑफ वेरिएबल्स, जितने भी वेरिएबल्स आपने उस क्लास के अंदर क्रिएट किए हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी ये थ्रू आउट द प्रोग्राम रहती है. हम पूरे प्रोग्राम में उस वेरिएबल को कहीं भी यूज कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज एन एडवांटेज ऑफ योर जावा और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. नाउ सेम थिंग वी कैन हैव. अब मुझे देखिए ये करने के बाद कैन आई हैव एन सब्सट्रैक्शन. एडिशन के जैसे मैं एक सब्सट्रैक्शन फंक्शन भी क्रिएट कर सकती हूँ, राइट. सो लेट्स ट्राई टू हैव एन सब्सट्रैक्शन. अब सब्सट्रैक्शन में हम क्या करेंगे, वी विल हैव अनदर वेरिएबल. अब देखिए इसको सी ही रखते हैं, एंड नाउ विल ट्राई टू एग्जीक्यूट द आउटपुट. टी डॉट सब्सट्रैक्शन. जब तक आप उस मेथड को कॉल नहीं करेंगे तब तक आपको आउटपुट नहीं मिलता है. दैट इज द ओनली केस what you have to keep in mind, right? Okay. मॅम तिथे जर आपण मग सी नसतं लिहिलं तर मग तरी आलं असतं का? नाही, सी तर लिहावंच लागेल ना. नाव शोला आपण किती वेळा कॉल केलेला आहे, फक्त एकदाच कॉल केलेला आहे. ओके, नाव फोकस ऑन दी स्क्रीन स्टुडंट्स. what we are having, see what we have done program मध्ये we have written two method, one is addition, another is subtraction, then we have written word show. Now in main class what we have done, we have created an object. Now first of all we are adding that d dot addition. Okay, now after this if I write down d dot show, तो आपको 2 बार स्टेटमेंट मिलेगा. पहले आपको एडिशन का आउटपुट मिलेगा एंड देन आपको किसका आउटपुट मिलेगा, सब्सट्रैक्शन का आउटपुट मिलेगा. ओके, एक्सपेक्टेड. यस, आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, 200. दैट इज रॉन्ग, है ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया आपका एडिशन. एडिशन में वो गार्बेज वैल्यू उठा रहा है क्या? ओके, एडिशन आपको करेक्ट मिला, फाइन. नाउ इसके बाद लेते हैं डी डॉट. नाउ सी में आपकी क्या वैल्यू अवेलेबल है, सी इज हैविंग 20 वैल्यू. नाउ लेट्स कॉल सब्सट्रैक्शन. Execution. Okay, let it get executed. Yes, once it is finished. Okay, now see, as you can see on the output screen, what first we have done, we have first created the addition. Then after having addition, once again I am using the same function, show function को मैंने फिर से use किया, and then we are getting a subtraction resultant. Okay, so this is an usability of object oriented concepts. जो UPS के concept है उनको use करने का ये तरीका है कि मैंने एक सिंगल ऑब्जेक्ट के थ्रू I can use multiple functions with the multiple functionality. हर बार मतलब शो का काम क्या है, उसका आउटपुट उसको शो करने का काम है. whether it is and whatever is the resultant वो उसके हिसाब से काम कर रहा है. Okay, so now with this we are stopping today here. आज के लिए हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं. आज का आपका लेक्चर का कंसेप्ट था मेथड, हाउ वी कैन क्रिएट डिफरेंट मेथड्स इन दी जावा प्रोग्राम. जावा में हम अलग अलग तरीके की मेथड्स को कैसे कॉल कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं. ओके, सो